We are going to start the miscellaneous exercise of inverse trigonometric function. First question again, cos inverse cos of 13 minus 6. Cos inverse cos of 13 minus 6. तो जी फिर से इसको हम लोगों ने उसी तरीके से करना है. We have to check whether the given answer is lying in the principal value branch or not. अब यहाँ पे cos inverse और cos को रिमूव कर दूंगा तो it will be 13 pi by 6. 13 pi by 6 मेरे पास जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करता है क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में. और अगर हम लोग 13 pi by 6 की बात करें तो ये 390 डिग्री बनता है. 390 डिग्री doesn't lie between the principal value branch of the given inverse trigonometric function. So what we need to do, we have to write down cos inverse cos of 2 pi plus pi by 6. Cos inverse cos of 2 pi plus pi by 6. अब यहाँ पे एक बात करेंगे हम लोग +1 क्लास की. +1 क्लास में जैसे हमारे पास ये 2 pi plus pi by 6 अगेन मूव करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है और cos में पॉजिटिव. So it will be cos inverse cos of pi by 6. और अब हम लोग इसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है pi by 6 which clearly belongs to the principal value branch of the given inverse trigonometric function. So our answer for this question is pi by 6. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ 7 pi by 6. एज इट इज टेंजेंट ऑफ 7 pi by 6 चेक करते हैं तो ये हमारे पास बेटा 210 डिग्री आता है. इट डज नॉट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिकॉज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल -pi by 2 to pi by 2. So we have to make arrangement for this also and we will write down it here as tan inverse tangent of pi plus pi by 6. बेटा जी pi plus pi by 6 मतलब 180 plus theta और 180 plus theta is third quadrant और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू +1 क्लास जब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े LI. Now this will be equals to tangent inverse tangent of pi by 6 and again tangent inverse और tangent remove कर देते हैं and we are left with only pi by 6 and clearly it belongs to the principal value branch of inverse trigonometric function of tangent inverse. So our answer for this question is pi by 6. ठीक है बेटा. Now let us start third question. Third question हमारे पास है we need to prove that 2 sin inverse 3 by 5 is equals to tangent inverse 24 by 7. इसको टेंजेंट इनवर्स 24 by 7 के बराबर प्रूव करना है. बेटा हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो 2 tan inverse x का पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ tan inverse x, लेकिन 2 sin inverse x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan inverse x नहीं पढ़ा. सो आई विल कन्वर्ट दिस sin inverse 3 by 5 इनटू tan inverse x. दो तरीके, आइदर मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम लोग लिख सकते हैं आइदर sin inverse x is equals to tangent inverse x over under root of 1 minus x square. x के साथ कंपेयर कीजिए, चाहे तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए या अगर ये फॉर्मूला ना लगाना लेट sin इनवर्स 3 by 5 is equals to थीटा. तो यहाँ से 3 by 5 is equals to sin थीटा आ जाएगा और उसके बाद छोटा सा हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम अपनी तरफ से लगाएंगे. दिस इज 3 5 पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 आ जाएगा और अगर sin थीटा 3 by 5 है तो इट इम्प्लाइज tangent theta will be equals to 3 by 4. So theta is equals to tan inverse 3 by 4 और थीटा हम लोग ने बेटा sin इनवर्स 3 by 5 कंसीडर किया था. तो इट इम्प्लाइज वी कैन से दैट sin इनवर्स 3 by 5 is equals to tan इनवर्स 3 by 5. तो अब यहां से गिवन क्वेश्चन में मैं बात करता हूं therefore 2 sin इनवर्स 3 by 5 will be equals to 2 tan इनवर्स 3 by 4. ये मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड. यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करने जा रहा हूं LHS कि 2 sin inverse 3 by 5 is equals to 2 tan inverse 3 by 4 and this will be equals to tan inverse 2 into 3 by 4 over 1 minus 3 by 4 का होल स्क्वायर. फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लगाया है 2 tan inverse x is equals to tangent inverse 2x over 1 minus x square. ये फॉर्मूला लगाया है जो हम लोगों ने एलिमेंटल प्रॉपर्टी पढ़ी है. तो अब इस हिसाब से हमारे पास क्या बनता है this is equals to tangent inverse 3 by 2 क्योंकि 2 और 4 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास आता है 1 minus 9 by 16. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं दैट इज tangent inverse
3/4 over 16 minus 9 over 16. So this is equals to tangent inverse 3/4 into 16/7. ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. So 3 4s are 12. ठीक है जी. So it will become tan inverse 12/7. एक मिनट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गई है. लेट अस चेक आवर मिस्टेक. मेक करेक्शंस हियर. यहाँ पे 3/2 के बाद हम लोगों ने 3/4 लिख दिया था. 3/2 लिखते हैं. सॉल्व करने के बाद हमारे पास 24/7 आ जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू RHS. Therefore left hand side is equal to right hand side. ठीक है. Hence proof. नोट कीजिए पुत्र जी. Sin inverse 8/17 prove that sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is equals to tangent inverse 77/56. ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है कि sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is equals to tangent inverse 77/36. अब बेटा इसमें एक चीज नोट कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास sin इनवर्स की फॉर्म में है और राइट हैंड साइड हमारे पास टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में है. पहला स्टेप है, यहाँ तो हम लोग ये दोनों को sin इनवर्स और sin इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं. या डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के sin इनवर्स में निकाल लूंगा. उसके बाद टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. आर चॉइस कि हम लोगों ने किस तरह से करना है. सो लेट अस स्टार्ट. पहले स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड. LHS sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5. ठीक है. इसके ऊपर मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं बेटा जी. ध्यान दीजिए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y वाला. याद कीजिए दैट फॉर्मूला वाज sin इनवर्स x √1 - y स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So this will be equals to sin inverse 1. सबसे पहले x है. x हो जाएगा 8/17 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर. ठीक है. कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं. इट विल बी sin इनवर्स 8/17 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 9 16 4/5 आ जाएगा पुत्र जी. चेक कीजिएगा सॉल्व करने के बाद. इट विल बी 4/5 देन 3/5 मल्टीप्लाई बाय 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64 225. इट विल बी 15/17. ठीक है. सो इसको सॉल्व करते हैं. ये sin इनवर्स 32/85 प्लस 45/85. ठीक है जी. 32/85 प्लस 45/85. So it will be equals to sin inverse 77/85. ये बेटा जी मेरे पास आंसर आया है sin इनवर्स की फॉर्म में. और अगर इसको sin इनवर्स की फॉर्म में बाद में हम लोग इसको टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. लेट sin इनवर्स 77/85 is equals to theta. तो 77/85 is equals to sin theta आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद फिर से वही बात, पाइथागोरस थ्योरम. अगर ये हमारे पास थीटा है, दिस विल बी 77 एंड दिस विल बी 85. और जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लेके सॉल्व करते हैं तो बेटा जी ये हमारे पास 56 आ जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम याद है ना. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. और वहां से जब हम लोग बेस स्क्वायर लगा के बेस फाइंड आउट करते हैं तो 56 आ जाएगा. सो इट implies tangent theta will be equals to 77/56. Therefore theta is equals to tan inverse 77/56. और थीटा हम लोगों ने कंसीडर किया था sin इनवर्स 77/85. It implies sin inverse 77/85 is equals to tangent inverse 77/56 and this is equals to right hand side. बेटा जी चेक कीजिए, यही हम लोगों ने प्रूव करनी है. ठीक है. नोट कीजिए पुत्र जी. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन इज cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 is equals to cos inverse
63 नहीं 33/65, 33/65 प्रूव करना है। अब बेटा इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी cos इनवर्स है, राइट हैंड साइड पे भी cos इनवर्स है। सो डायरेक्टली वी कैन अप्लाई cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स फार्मूला। LHS cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फार्मूला, एंड दैट विल बी cos इनवर्स बेटा जी xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद कीजिए फॉर्मूला जो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज लिखाई थी, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स, सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाय y माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स 12 48/65 माइनस, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं 1 माइनस 4 का स्क्वायर ओवर 5 इट विल बी 3/5 और स्क्वायर रूट लेकर, क्योंकि ये आ जाएगा 25 माइनस 16 9/25 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 3/5। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 5/13 में जाता है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 बचेगा, इट विल बी 5/13। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स 48 माइनस 15/65। 13 5 का 65 होता है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65, एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और बेटा जी यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 56/65। बेटा जी चेक कीजिए, यहाँ राइट हैंड साइड में आई नीड टू राइट डाउन द आंसर इन द फॉर्म ऑफ sin इनवर्स। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सारी टर्म्स sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक तो ऑलरेडी मेरे पास sin इनवर्स की फॉर्म में है, इसको मैं sin इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। नाउ सी हियर LHS cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5। और बेटा जी मैंने आपको बताया है कि cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर के बराबर होता है, एलिमेंटल प्रॉपर्टी। अगर नहीं तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट विल बी sin इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर प्लस sin इनवर्स 3/5। ये हमारे पास आ जाता है sin इनवर्स 1 माइनस 144/169 इट विल बी 5/13 प्लस sin इनवर्स 3/5। और उसके बाद अब दोनों sin इनवर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, वी कैन अप्लाई sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y फॉर्मूला। क्या था sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, एंड दैट इज इक्वल्स टू sin इनवर्स इस तरह से बेटा जी x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास। सो इट विल बी sin इनवर्स इस तरह से बेटा जी 5/13 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब हम लोग बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे विल गेट sin इनवर्स 56/65। चेक कर लीजिए, इट विल बी sin इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 9 4/13 4/5 प्लस 3/5 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 169 12/13। और चेक कीजिए 5 4 जा 20 12 3 जा 36 36 प्लस 20 56/65, and this is equals to sin inverse 56/65, and this is equal to right hand side। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। सन prove that means हम लोग को find the value कहा है tangent inverse 1/5 plus tangent inverse 1/7
प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। हम लोगों ने इसको π/4 के इक्वल प्रूव करना है। बेटा ये सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों के ऊपर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाऊंगा, फिर उसके बाद इन दोनों के ऊपर डायरेक्टली फार्मूला लगाने जा रहा हूं। वी नो दैट tangent inverse x plus tangent inverse y is equals to tangent inverse x plus y over 1 minus xy। तो ये फार्मूला हम लोग डायरेक्टली लगाने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या बनेगा, दो बार ये फार्मूला लगेगा, पहले इन दोनों के ऊपर फिर इन दोनों के ऊपर, और उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसके ऊपर फिर से यही फार्मूला लगेगा। सो इट विल बी टेंजेंट इनवर्स 1/5 plus 1/7 divided by 1 minus 1/5 into 1/7 plus tangent inverse 1/3 plus 1/8 divided by 1 minus 1/3 into 1/8। इसको सिंपलीफाई करते हैं। इट इज tan इनवर्स 7 plus 5 over 35 divided by 35 minus 1 over 35 plus tangent inverse 24 LCM आ जाएगा। इट इज 8 plus 3 divided by 24 minus 1 over 24। ठीक है, यहाँ 35 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ 24 कैंसल आउट हो जाएगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विद टेंजेंट इनवर्स 12 over 34 प्लस टेंजेंट इनवर्स 11 over 23। अगर इसको कैंसल आउट करना है तो के टेबल पे कैंसल करके 6 over 17 लिख लेते हैं। सो अब दोबारा से हम लोग इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। टेंजेंट इनवर्स ये बचा बेटा जी हमारे पास 6 over 17 प्लस टेंजेंट इनवर्स 11 over 23। ठीक है, तो अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, इट विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 ओवर 1 minus 6/17 into 11/23। 17 और 23 का बेटा जी एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 391। सो tan इनवर्स 391 एलसीएम ये आ जाएगा 23 बजा 23 6 ला 138 प्लस यहाँ पर 17 का बच जाएगा यहाँ पे 187 डिवाइडेड बाय 391 माइनस 66 ओवर 391। ठीक है, सो 138 प्लस 187 इट इज tan इनवर्स, पहले 391 कैंसिल आउट कर देते हैं, न्यूमरेटर में बचता 325 और डिनोमिनेटर में भी 325, ये कैंसिल आउट हो गए। दिस इज टेंजेंट इनवर्स 1 और 1 को पुत्र जी हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट π/4। सो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ तो बेटा डायरेक्टली इसका आंसर π/4 लिख दीजिए तो भी चल जाएगा। यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स टेंजेंट π/4 and in next step you can write down π/4 which is equals to right hand side। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि tan इनवर्स 1 is equals to डायरेक्ट π/4 भी लिख सकते हैं आप लोग आंसर। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना तो फिर इस तरह से tan इनवर्स tan π/4 which is equals to π/4, और यही चीज बेटा इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करनी है। So let us start ninth question. We need to prove that tangent inverse under root x is equals to 1/2 cos inverse 1 minus x over 1 plus x। 1 minus x over 1 plus x को हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट x के बराबर। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन इसको दोनों साइड से मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। पहले ये 2 दूसरी साइड ले जाता हूँ, 2 tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 minus x over 1 plus x। ठीक है जी, इस तरह से ले लेते हैं। नाउ पुट अंडर रूट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इन RHS। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने अंडर रूट x को टेंजेंट थीटा के बराबर प्रूव करना है। यहाँ इसको नहीं भी सॉल्व करना ना तो डायरेक्टली मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। ये देखिए डायरेक्टली पुट अंडर रूट x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इन RHS,
और अगर अंडर रूट एक्स tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट एक्स। चलिए बात करते हैं राइट हैंड साइड में। देयरफॉर आरएचएस क्या बनता है, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। याद कीजिए अगर अंडर रूट एक्स को हम लोगों ने tan थीटा पुट किया है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम लोग +1 क्लास का पद्धति फार्मूला लगाते हैं 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा, मल्टीपल एंगल फार्मूले। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, और cos इनवर्स और cos रिमूव हो जाएंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 into 2 थीटा, 2 और 2 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या कंसीडर की थी, tan इनवर्स अंडर रूट x, एंड दिस इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, और ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है। सो राइट हैंड साइड में x की वैल्यू आप अंडर रूट x की वैल्यू tan थीटा पुट कीजिए, यू कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नोट कीजिए, बता दीजिए इसको। इन 10th क्वेश्चन प्रूव दैट cot इनवर्स कोटेंजेंट इनवर्स, अब ये देखिए बेटा जी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। बेटा जी इसको प्रूव करना है हम लोगों ने x/2 के बराबर। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्रोक्सीमेटली सेम टर्म्स हैं, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स है और अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स है। अब यहाँ पे ये देखिए सॉल्यूशन, हियर 1 प्लस साइन एक्स, बेटा देखिए 1 को मैं लिख देता हूं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और जो sin x है इसका फार्मूला लगा देता हूं 2 sin x/2 into cos x/2। चेक कीजिए, याद कीजिए +1 क्लास के सब मल्टीपल एंगल के फार्मूले। जो 1 है उसको तो लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और जो sin थीटा था उसका फार्मूला लिख दिया 2 sin θ/2 cos θ/2। Now see here, this is a square plus b square plus 2ab, it will be cos x/2 plus sin x/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस sin x जो है वो cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर है। सिमिलरली वी कैन राइट डाउन 1 minus sin x is equals to cos x/2 minus sin x/2 का होल स्क्वायर। और बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाहर मैंने कोटेंजेंट इनवर्स प्रूव करना है, इसलिए मैंने cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 लिखा। अगर टेंजेंट इनवर्स होता तो मैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 लिखता। अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, a प्लस b या b प्लस a दोनों सेम चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि आई हैव टू प्रूव इट इक्वल टू cot इनवर्स x, cot बनाना है, इसलिए मुझे cos प्लस sin लिखना पड़ेगा और दूसरा cos माइनस sin। Now therefore from left hand side, अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से बात करते हैं, it implies LHS will become cotangent inverse। चेक कीजिएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x, it will become cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, और इसका सारे का अंडर रूट। ये हुआ न्यूमरेटर। सिमिलरली डिनोमिनेटर इज cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर, अंडर रूट में माइनस फिर से अंडर रूट में cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब स्क्वायर रूट और अंडर रूट और स्क्वायर का साइन आपस में रिमूव हो जाता है, सो इट विल बी इक्वल्स टू cot इनवर्स। चेक कीजिएगा, cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, और डिनोमिनेटर क्या बनना है बेटा जी, cos x/2 प्लस sin x/2, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है सो इट विल बिकम माइनस cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक है, so minus sin x/2 plus sin x/2 cancelled out, cos x/2 और minus cos x/2 cancelled out, so we are left with cotangent inverse 2 cos x/2 over 2 sin x/2। 2 और 2 रिमूव हो जाता है, so it will be cot inverse
कोटेंजेंट x/2 और उसके बाद cot इनवर्स और cot रिमूव हो गया, so it will be x/2 and this we have to prove only which is equals to right hand side. दोबारा बता रहा हूं बेटा जी, अगर बाहर कोटेंजेंट इनवर्स होता तो I can write it as sin x/2 plus cos x/2 whole square and sin x/2 minus cos x/2 whole square, लेकिन क्योंकि बाहर कोटेंजेंट था और मुझे न्यूमरेटर में cos चाहिए, that is why I have written it as cos x/2 plus sin x/2 whole square. ठीक है बेटा. Now 12th question of this exercise, prove that 9 pi by 8 minus 9 pi by 4 sin inverse 1 by 3 is equals to 9 by 4 sin inverse 2 under root 2 over 3. We need to prove 9 pi by 8 minus 9 pi by 4 sin inverse 1 by 3 is equals to 9 by 4 sin inverse 2 under root 2 over 3. लेफ्ट हैंड साइड चेक कीजिए, देखिए पता नहीं 9 pi by 4 कॉमन निकलता है मेरे पास या 9 by 4, पाई मैं जानबूझ के कॉमन नहीं निकाल रहा हूं, 9 by 4 कॉमन निकला, यहाँ पे मेरे पास बचा pi by 2 माइनस sin इनवर्स 1 by 3. स्टेटमेंट बेटा ठीक कीजिए, यहाँ पाई नहीं आना है, 9 by 4 और 9 by 4 कॉमन निकला, यहाँ पे pi by 2 माइनस sin इनवर्स 1 by 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 by 4 cos इनवर्स 1 by 3. रीजन लिखेंगे बिकॉज sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू pi by 2 है, तो pi by 2 माइनस sin इनवर्स x क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 by 4 sin इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 by 3 का होल स्क्वायर. और इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. एलिमेंटल प्रॉपर्टी जो पहले भी मैंने करवाई है. सो दिस इज इक्वल्स टू 9 by 4 sin इनवर्स, ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 8 over 9 अंडर रूट एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 by 4 sin इनवर्स. अंडर रूट 8 हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और 9 का अंडर रूट हो जाता है 3 and this is equals to right hand side for this question. ठीक है बता जी.